Hello, good morning. Now, in this series of ongoing video lectures of Shalakadendra, I'm going to teach you rhinitis. The Ayurvedic relative diseases of rhinitis we have already studied, like Shwatu, Brishtu, Deepta, and Nasashov. Shwatu was related with allergic rhinitis, Brishtu with chronic rhinitis, Deepta with acute rhinitis, and Nasashov with rhinitis. So now we are going to study the modern comparative studies of these diseases, that is rhinitis. So let's begin the lecture. Rhinitis. Rhinitis is irritation and inflammation of the mucous membrane inside the nose. Its clinical features. Common clinical feature of rhinitis include stuffy nose, runny nose, post-nasal drip, sneezing, nasal itching, coughing, headache, fatigue, malaise, cognitive impairment, meaning mental impairment. So these are common clinical feature of all the rhinitis. Coming to classification, तो इसकी क्लासिफिकेशन को हमने टेबुलर फॉर्म में प्रस्तुत किया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो रिनाइटिस को ब्रॉडली हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव. तो पहले हम इन्फेक्टिव की बात करते हैं. इन्फेक्टिव टू टाइप का होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक. तो फर्दर इन्फेक्टिव, एक्यूट और क्रॉनिक जो है आगे टू टाइप्स का होता है. एक्यूट भी टू टाइप्स का, क्रॉनिक भी टू टाइप्स का. एक्यूट स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, और जो क्रॉनिक है वो भी स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक. तो एक्यूट स्पेसिफिक में जो डिजीजेस आती हैं वो है नेजल डिप्थीरिया एंड पुरुलेंट रिनाइटिस. नॉन स्पेसिफिक एक्यूट रिनाइटिस में कोरिजा आता है. उसके बाद हम क्रॉनिक की बात करते हैं. क्रॉनिक टू टाइप्स का है, जैसे पहले बताया है, वैसे स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक. स्पेसिफिक में राइनोस्पोरिडियोसिस, राइनोस्क्लेरोमा, syphilic rhinitis, leprosy of nose, tuberculosis of nose, and leishmaniasis. ये specific type of chronic infective rhinitis के हैं. और chronic non-specific infective types जो हैं वो है simple hypertrophic rhinitis, atrophic rhinitis, rhinitis sicca, rhinitis caseosa and bacterial rhinitis. तो ये तो हो गई इन्फेक्टिव टाइप्स. देन नॉन इन्फेक्टिव. नॉन इन्फेक्टिव में टू टाइप्स आती हैं, एलर्जिक एंड वैसोमोटर rhinitis. तो इस प्रकार से ये rhinitis की क्लासिफिकेशन इस टेबल के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हैं, the inflammation could be caused by viruses, bacteria, irritants, and allergens. इसके टाइप्स हैं. rhinitis is categorized into three types. इसके three types माने जाते हैं. First is infectious. Infectious, it includes acute and chronic bacterial infections.
दूसरा टाइप है जो नॉन एलर्जिक रिनाइटिस. इट इंक्लूड्स vasomotor, idiopathic rhinitis, hormonal, atrophic rhinitis, occupational gustatory rhinitis, and rhinitis medicamentosa, which is drug induced. तीसरा टाइप का जो rhinitis है वो है allergic rhinitis. It is triggered by pollen, mold, animal dander, dust and other inhaled allergens. तो ये पोलन से मेनली होता है और इनहेल एलर्जन से भी हो सकता है, डस्ट और एनिमल डेंडर से होता है. तो सबसे पहले इन्फेक्शियस टाइप ऑफ राइनाइटिस को हम डिस्कस करते हैं. Rhinitis is commonly caused by a viral or bacterial infection, including the common cold, which is caused by rhinoviruses, coronaviruses, and influenza viruses. Other caused by adenoviruses, human parainfluenza viruses, human respiratory syncytial viruses, enteroviruses other than rhinoviruses, metapneumoviruses, and measles viruses. Then bacterial sinusitis or rhinitis, which is commonly caused by Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. Symptoms of the common cold or rhinitis include rhinorrhea, that is watering of nose, sneezing, sore throat, cough, and congestion. सेकंड टाइप जो है नॉन एलर्जिक रिनाइटिस है. नॉन एलर्जिक रिनाइटिस रेफर टू रिनाइटिस दैट इज नॉट ड्यू टू एन एलर्जी. तो ये एलर्जी के कारण जो नहीं होता है रिनाइटिस, उसको नॉन एलर्जिक रिनाइटिस कहते हैं. द डायग्नोसिस एस्टैब्लिश्ड बाय एक्सक्लूडिंग एलर्जिक कॉजेज. तो इसका डायग्नोज जो है एलर्जिक कॉजेज को एक्सक्लूड करके किया जाता है. It is multifactorial and include chemical, smoking, gustatory, hormonal, senile, atrophic, medication induced, which is known as rhinitis medicamentosa, local allergic rhinitis, non-allergic rhinitis, eosinophilia syndrome, also refers as neo and idiopathic. So these are non-allergic type of rhinitis. Then vasomotor rhinitis. In vasomotor rhinitis, certain non-specific stimuli such as changes in environmental like temperature, humidity, barometric pressure or weather, airborne irritants like odors or fumes, dietary factors such as spicy food or alcohol, sexual arousal, exercise and emotional factors trigger vasomotor rhinitis. It is considered that these non-allergic triggers cause dilatation of the blood vessels in the lining of the nose, which results in swelling and drainage. तो ये इसका नॉन स्पेसिफिक स्टिमुलाई होता है और इसके फैक्टर्स जो है वेरिएबल फैक्टर्स हैं, जैसे चेंजेस इन एनवायरनमेंट, इरिटेंट्स हो गए,
डाइटरी फैक्टर्स हो गया, सेक्सुअल एरोजल हो गया, एक्सरसाइज हो गए, इमोशनल फैक्टर्स हो गए, ये सारे जो है इस रेनाइटिस वास्कुलर रेनाइटिस को ट्रिगर करते हैं। इसमें जो ब्लड वेसल्स जो नोज को लाइनिंग करते हैं, लाइनिंग ऑफ द नोज को के ब्लड वेसल जो डायलेट हो जाते हैं, जो कि स्वेलिंग और ड्रेनेज को कॉज करते हैं। देन कमिंग टू एलर्जिक रेनाइटिस, which is our third type. Allergic rhinitis may be seasonal or perennial as per classification. Seasonal जो एक सीजन में होता है और perennial जो पूरे सीजन्स में रहता है। इसकी साइंस है कंजक्टिवल स्वेलिंग, इरिथीमा, eyelid swelling, lower eyelid venous stasis. लोअर आईलिड venous stasis जो होता है वो it occurs due to spasm of mulus muscles, the only involuntary eyelid smooth muscle. ये eyelid की एकमात्र जो है involuntary muscle है. Impedes venous return in the skin and subcutaneous tissue of the lower eyelids. This causes discoloration and edema, resulting in the condition known as bags under the eye. तो bags under the eyes उस कंडीशन को बोलते हैं जब लोअर आईलिड venous stasis हो जाता है और ये spasm mular muscle होता है जो कि एकमात्र involuntary eyelid smooth muscle है. और इसमें जो साइन हमें मिलता है एलर्जिक रेनाइटिस में वो है ट्रांसवर्स नेजल क्रीज. A black line across the middle of dorsum of nose, which occur due to repeated upward rubbing of the nose, and it resembles a salute known as allergic salute. तो इसमें एक ट्रांसवर्स नेजल क्रीज बन जाती है, यानी कि एक ब्लैक लाइन बन जाती है जो कि एक सल्यूट के टाइप की लगती है, इसलिए इसको एलर्जिक सल्यूट कहते हैं. Then swollen nasal turbinates, middle ear effusion, DNA Morgan folds. Denny Morgan folds जो होते हैं, these are folds in the skin below the eyelid. ये eyelid के नीचे की स्किन में folds होते हैं, वो एलर्जिक रेनाइटिस में हो जाते हैं. Then allergic shyness, allergic shyness जो होते हैं rings under the eyes. Eyes के नीचे जो rings होती हैं उनको एलर्जिक shyness कहते हैं. तो अगर हम एलर्जिक रेनाइटिस की साइंस की बात कर ली, तो अगर हम एलर्जिक रेनाइटिस की अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम जो ओरल लोकल एप्लीकेशन के लिए स्टेरॉइड दे सकते हैं. स्टेरॉइड्स के अलावा एंटीहिस्टामाइन्स जैसे फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामाइन्स, देन डीकंजेस्टेंट्स दे सकते हैं जो कि लोकल सिस्टमिक 2 फॉर्म्स में आते हैं. लोकल में एपिनेफ्रिन जिसका एग्जांपल है, और सिस्टमिक डीकंजेस्टेंट में जैसे जो है सूडोएफेड्रिन आ गया, तो और लोकल में जो है फिनाइलेफ्रिन, प्रोपिलेमाइन, ये सब हम डीकंजेस्टेंट दे सकते हैं. इसके अलावा जो हम हैं एलर्जिक रेनाइटिस में जो है मास्ट सेल्स को स्टेबलाइज करने के लिए मास्टर
स्टेबलाइजर्स यूज कर सकते हैं। देन हम इसमें जो है डिसेंसिटाइजेशन कर सकते हैं। डिसेंसिटाइजेशन किसी एलर्जन को स्मॉल अमाउंट में यूज करके उसकी डोज बढ़ाते जाके एक थ्रेशोल्ड तक लाने की कंडीशन को डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं, ताकि वो पर्सन उस एलर्जन के प्रति, एलर्जी के प्रति सेंसिटाइजेशन जो है वो खत्म हो जाए। तो ये हम ट्रीटमेंट एलर्जी के रेनाइटिस में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा रेनाइटिस का टाइप है वो रेनाइटिस मेडिकामेंटोसा, जिसको मैंने पहले ही बताया था कि ये ड्रग इंड्यूस होता है। Rhinitis medicamentosa is a form of drug-induced non-allergic rhinitis, which is associated with nasal congestion brought on by the use of certain oral medications, like primarily sympathomimetic amine and two midazoline derivatives, and topical decongestants like oxymetazoline, phenylephrine, xylometazoline, nafazoline nasal sprays that constrict the blood vessels in the lining of the nose. तो ये ड्रग्स जो हैं ओरल और जो लोकल एप्लीकेशन के लिए दी जाती हैं वो रेनाइटिस मेडिकामेंटोसा कॉज करती हैं, जो कि नेजल कंजेशन को प्रोड्यूस करते हैं। Then coming to atrophic rhinitis, it is inflammatory condition in which atrophy or nasal bones and turbinate occurs. इसमें nasal bones और turbinates की atrophy हो जाती है। इसके साइंस जो हैं atrophic rhinitis के वो हैं nasal cavities full of grayish black or greenish bright crust, तो उसमें crust formation मिलती है नोज में। On removing the crust, nasal cavity appears roomy, और इनकी crust को remove करने से जो है nasal cavity जो है वो ज़्यादा जो roomy दिखती है। Atrophy of turbinates takes place to such an extent that the posterior pharyngeal valve can be easily seen. तो turbinates की atrophy हो जाती है lateral valve पे जो present होते हैं, और इतनी extent तक हो जाती है कि posterior pharyngeal valve भी आसानी से दिख सकती है। और nasal turbinates जो है वो they are reduced to ridges, वो ridges में convert हो जाते हैं। Then pale nasal mucosa, nasal vestibule dermatitis and septal perforation may be present. Then saddle deformity of nose और saddle type का हो जाता है। Atrophic changes may be seen in pharynx and larynx. So pharynx and larynx भी involve हो सकते हैं। Paranasal sinus are usually small and underdeveloped. इसमें paranasal sinus के size में भी changes आ जाते हैं जो कि small और underdeveloped हो जाती हैं। तो हम atrophic rhinitis की बात करें तो इसमें atrophy of nasal bone और turbinate मिलते हैं और crust formation होती है। तो अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हमें जो सबसे मेन है वो हाइजीन, नेजल हाइजीन मेनली। तो इसके लिए हम डोजिंग यूज करते हैं विद अल्कलाइन सॉल्यूशन। देन इसमें हम 25 एनहाइड्रस ग्लूकोज विद ग्लिसरीन यूज करते हैं फॉर रीजनरेशन। ऑस्ट्रोजन थेरेपी करते हैं, प्लासेंटल थेरेपी करते हैं ताकि जो वैसोडाइलेशन हो, वायोसोडाइलेशन होके और रीजनरेशन वहाँ पे जो है एराइज हो। विटामिन ई और आयरन का भी इसमें रोल होता है रीजनरेशन में। देन पोटेशियम आयोडाइड को लोकली अप्लाइड किया जाए वो भी यूजफुल माना गया है।
एट्रोफिक रिनाइटिस में। और इसमें जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं, जिसको यंग ऑपरेशन, और जो आजकल परफॉर्म करते हैं वो मॉडिफाइड यंग ऑपरेशन। इसमें क्या करते हैं यंग ऑपरेशन में, इसमें नोज को 6 मंथ्स के लिए नेजल फोर्स को लेकर स्विचर कर देते हैं, यानी कि हम नोज को बंद कर देते हैं स्विचिंग करके। इसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ के बाद जब नोज की ओपनिंग की जाती है, तो जो टर्बिनेट्स है और जो एट्रोपिक पार्ट्स है वो रीजनरेट हो जाते हैं। और ये जो है बहुत अनकंफर्टेबल मेथड है ट्रीटमेंट का। तो उसके जगह जो है मॉडिफाइड यंग्स ऑपरेशन को लिया जाता है, जिसमें पार्शियली क्लोज किया जाता है नेजल कैविटीज को। और इसमें भी जो है कंफर्ट पेशेंट को इतना नहीं रहता, तो ये एज ए लास्ट ऑप्शन लिया जाता है, जहाँ पे कोई भी टाइप का ट्रीटमेंट हेल्पफुल ना हो, वहाँ पे ही ये यंग्स ऑपरेशन या मॉडिफाइड यंग्स ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। अदरवाइज कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही इसको क्योर करने की ट्राई की जाती है एट्रोफिक रिनाइटिस। Then coming to rhinitis का, it is chronic form of dryness of the nasal mucous membrane. इसमें भी नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन की ड्राइनेस मिलती है लाइक एट्रोफिक रिनाइटिस। उसमें मेनली क्रस्ट फॉर्मेशन होती है, इसमें ड्राइनेस ऑफ द नेजल म्यूकस होती है। तो फिर हम आते हैं कि चाहे कोई भी राइनाइटिस हो, इन्फेक्टिव हो, नॉन इन्फेक्टिव हो, अक्यूट हो, क्रॉनिक हो, एलर्जिक हो, नॉन एलर्जिक हो, स्पेसिफिक हो, नॉन स्पेसिफिक हो, उनका डायग्नोसिस हमने एक जनरल डायग्नोसिस कैसे करना है। The different forms of rhinitis are essentially diagnosed clinically. Clinically diagnose करते हैं different types को। Vasomotor rhinitis is differentiated from viral and bacterial infections as it lacks of purulent exudate and crusting. तो vasomotor rhinitis में purulent exudates and crusting absent रहते हैं। उसमें तो अननोन फैक्टर्स रहते हैं, जो उसमें दो फैक्टर्स रहते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, डिफरेंट फैक्टर्स हो गए, जो कि वेसोमोटर रिनाइटिस कॉज करते हैं, वो नॉन इन्फेक्टिव टाइप है। इसी को हम अगर वेसोमोटर रिनाइटिस को एलर्जिक रिनाइटिस से डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसमें एलर्जन की एब्सेंस होती है, absence of allergen in case of vasomotor rhinitis, as allergens are present in allergic rhinitis. तो मैनेजमेंट, अगर हम जनरल मैनेजमेंट की बात करें, तो the management of rhinitis depends on the underlying cause. तो मैनेजमेंट जो है वो अंडरलाइन कॉज पे डिपेंड करती है। फॉर एलर्जिक rhinitis, intranasal corticosteroids are recommended. For severe symptoms, intranasal antihistamines may be added. तो एलर्जिक कंडीशंस में इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और इंट्रानेजल एंटीहिस्टामाइन्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था, वो यूज करते हैं। Then prevention of rhinitis. In the case of infectious rhinitis, vaccination against involved microorganisms may lead to its prevention. तो वैक्सीनेशन अगर यूज की जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसको कॉज कर रहे हैं, तो इसकी प्रिवेंशन की जा सकती है इन्फेक्शियस कंडीशन। सो थैंक यू।
Thank you very much for listening to the lecture. So in this lecture, we have discussed the types, definition of rhinitis, different types of rhinitis, their classification, broadly classified into infectious, non-infectious, then acute and chronic, then specific and non-specific in both acute and chronic. Then non-infective types include allergic and vasomotor. टाइप्स के अलावा फिर हमने यहाँ पे इनके जनरल क्लिनिकल फीचर्स देखे. उसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिनाइटिस की डेफिनेशंस, उनके साइंस जैसे एट्रोफिक रिनाइटिस, एलर्जिक रिनाइटिस, वैसोमोटर रिनाइटिस के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिनाइटिस सिक्का के और इन सब टाइप्स के फीचर्स, रेनाइटिस मेडिकामेंटोसा के कॉजेस, इनका हमने यहाँ पे डिस्कशन किया. साथ में हमने डायग्नोसिस, रेनाइटिस की डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और प्रिवेंशन के मेथड्स की हमने यहाँ पे स्टडी की है. तो इस प्रकार से हमारा ये रेनाइटिस का लेक्चर खत्म होता है. तो हमने रेनाइटिस और उससे एसोसिएटेड आयुर्वेदिक डिजीजेज जो हैं वो हमारा लेक्चर फिनिश हो गया है. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर. कीप स्टडिंग. हैव अ नाइस डे.